मावा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛੀਨ ਲਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛੀਨ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੇੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਣੇਗਾ और ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ कहने? मावा दे काम होंगे करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे, अपने पेट के लिए करेंगे। सर जी वो तो गोलियां मार देते हैं अगर एहतजाज करता है, कोई डर नहीं है। ओ यार मर जावांगे, जान छूट जाएगी। रोज रोज दे मरन को एक बारी मर जावे बंदा ठीक है यार। रोज दे बंदा मरदा, सुबह ही मरदा, शाम ही मरदा, बिजली ने मिलां ते मरदा, गैस ते मरदा। मैनू दस एक बारी मौत आ जावे ते खुदकशी तो बच जावांगे, इन्हां दे जिम्मे लग जावांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। पंजाब जो शहर है, आप इसको कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट है। यहाँ पर हर कोई एक रोजगार ढूंढने आता है लाहौर के शहर में। लेकिन यहाँ पर कुछ चंद दिनों से दो राय मुसल्लत की जा रही है। पहली राय कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ कौम की माँ है। इससे पहले कौम की माँ फातिमा जिन्ना को कहा जाता था। लेकिन नाज़रीन किराम, दूसरी राय जो है वो है खामोश रहने की। और वो क्यों नाज़रीन किराम? तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें नाज़रीन किराम जो पहले रोजगार थे वो भी तबाह हो चुके हैं। और इस वक्त आवाम जो है वो ये बता रही है कि हम लोग कई ज़्यादा परेशान हैं। अब नाज़रीन किराम आवाम की तरफ हम चलेंगे और हम इनसे यही पूछेंगे क्या वाकई में वज़ीर आला मरियम नवाज को वो कौम की माँ समझते हैं और उनके काम से मुतमईन है या नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम बानी चेयरमैन PTI इमरान अहमद खान नियाज़ी ने जेल के अंदर कहा है कि अब फैसला हम लोग सड़कों पर करेंगे, जुल्म का हम लोग जवाब सड़कों पर देंगे। तो आवाम क्या बानी चेयरमैन का अब दोबारा से साथ देगी मैसेकर ऑफ 26 के बाद? आइए आवाम की तरफ चलेंगे और बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। बुजुर्ग को ताड़ी उम्र भी मेरे तो ज़्यादा है ते मरियम नवाज ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛੀਨ ਲਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉੱਤੇ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ 16,000 ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਲ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਸਵਾਰਨ ਕੀ ਆਏ ਨੇ? ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਲੀ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਛੀਨ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੇੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਆਣੇਗਾ और ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਜਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਂ कहने? ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैनू जवाब दे बच्चा, मेरा तू पुत्र है। नहीं सर जी मेरी गाल तो नाराज ना हो। ना बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम लोग तो यही आपसे पूछने आए हैं, आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज शरीफ जो काम कर रही हैं आप बिल्कुल इससे मुतमईन नहीं है? 1% भी, और पूरी दुनिया नहीं मुतमईन है जो मुझे कह रहे हो। आप मेरा बयान ये इशू करना। मैं करूंगा। अंकल लास्ट आपसे ये है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उन्होंने भी काफी ज्यादा काम किए, लेकिन अब वो जेल में बैठ के कह रहे हैं कि इसका वाहिद हल है कि हम लोग एहतजाज करें। तो क्या आप उनके साथ एहतजाज में शरीक होंगे? करेंगे, अपने हक के लिए करेंगे, अपने पेट के लिए करेंगे। सर जी वो तो गोलियां मार देते हैं अगर एहतजाज करता है, कोई डर नहीं है। ओ यार मर जावांगे, जान छूट जाएगी। रोज रोज दे मरन को एक बारी मर जावे बंदा ठीक है यार। रोज दे बंदा मरदा, सुबह ही मरदा, शाम ही मरदा, बिजली ने मिलां ते मरदा, गैस ते मरदा। मैनू दस एक बारी मौत आ जावे ते खुदकशी तो बच जावांगे, इन्हां दे जिम्मे
लग जाएंगे। चले मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन किराम, ये हालात हैं, बुजुर्ग हमारे साथ इमरान शहरी हैं। खान जब आया था ना, जी, जी। उसने ये कहा था टीवी पर कि रेडी वाले और छापे वाले को तंग नहीं करना। बिल्कुल ये कहा था। तो ये हमसे इंतकाम ले रही है, इन लोगों ने वोट इनको नहीं दिए, ये वो बदला ले रहे हैं लोगों से। अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये जिस तरह जीते हैं इन्हें पता है, ये अपने गिरवान में जाकर देखें कैसे जीते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत और शुक्रिया। आप लोगों को भी पता है ये कैसे जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अंकल। देखें ये आवाम की राय है, मैं इसमें कोई मुसल्लत नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, पहले ये बताएं आपकी यहाँ पे रेडी है, काम क्या करते हैं आप? हमने वो उधर रेडी लगवाया हुआ है। रेडी लगवाई हुई है। मेरे भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या तकलीफ पेश आ रही है तजावुजात के ऊपर? बस ज्यादती कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं चाहिए। लोगों का सारा कारोबार खराब हो गया, लोग नुकसान में है। ठीक है। ये जो 2 महीने जितना सख्ती चल गया, सारा लोग परेशान है। घर जाने का रास्ते का पता नहीं है कैसा जाएगा। हाँ, जी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? बड़ा परेशानी है, सख्ती बहुत है, काम करना ही देता ही नहीं है। मेरे भाई वजीर आजम इमरान खान साहब थे जिन्होंने रेडी बांध प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था। अब वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है, उनको कौम की माँ कहा जा रहा है। आप इससे मुतमईन हैं? वो कौम की वाकई में माँ है? इमरान खान की हुकूमत में हमें इतना परेशानी नहीं हुआ जितना ये 2 महीने में हमें तकलीफ हुई, जलील हो गया, नुकसान हो गया। बहुत तकलीफ है। रीडी वाले को छोड़ता नहीं है, रीडी ले जाता है, वापस नहीं देता है, उसको ख़त्म करा दे, तोड़ फोड़ कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका हल जो है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं दोबारा एहतजाज करने निकलूंगा, क्या आप उनके साथ एहतजाज में शरीक होंगे? इंशाल्लाह शरीक हो गया ना। अभी तो काम खराब है, हमने तो कुछ ना कुछ लाजमी करना है। भाईजान मैसेकर और इस्लामाबाद, मतलब 26 नवंबर को गोलियां लगी सीधा एहतजाज वालों को, तब भी आप डर नहीं रहे? आप कह रहे हैं मैं हम जाऊंगा। जाएगा ना। देखो कारोबार खराब हो रहा है, सारा रोजगार खराब हो रहा है, इससे बाद फिर क्या हाल निकलेगा इस। आप जाएंगे? हम जाएगा एहतिजाज पे ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे चलते रहेंगे। नाज़रीन किराम, ये अवामी तासुरात हैं। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। कोई मसला नहीं, हम सबसे बात कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा आपसे वादा है। आप ये बताएं कि इस वक्त रोजगार के हालात कैसे हैं, कि इस वक्त प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? प्रॉब्लम यही आ रही है, ये कारपोरेशन वाले तंग कर रहे हैं, वाल्टन वाले तंग कर रहे हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं आके हमें। यानी कि इतना स्टॉल का रेंट नहीं होता है जितने हमें इन्हें देने पड़ते हैं। दे भी रहे हैं, रोज़ के भी दे रहे हैं, वैसे भी ले जाते हैं, लेकिन तंग करते हैं, माल समेत ले जाते हैं, रेडियाँ वगैरह हर चीज़। लेकिन यार हमने तो ये सुना है कि मरियम नवाज शरीफ कह रही है कि काम बहुत हो रहा है पंजाब में। कहाँ हो रहा है? मरियम नवाज से कह रही हैं ये। कहाँ पर हो रहा है पता तो लगे। ये रोजगार है, सुबह से लेकर रात तक 4 पीस बेच लो, 5 बेच लो, वो किराया दे दो और चले जाओ घर पे। ये हालात हो गए आप कारोबार के? ये हालात है आपके सामने ही यार। किराया भी नहीं कर रहा जो हालात हैं। ये दुकान वाले सारा दिन हमारा वेट करते हैं कब हम किराया देंगे उनको। ये हालात है। ये हालात हो चुके ये हैं। हालात हो चुके हैं। मेरे भाई वजीर आला मरियम नवाज ने अपने आप को और उनकी टीम बोल रही है कि वो कौम की माँ है। किस हवाले से माँ है? यहाँ पर फिर बच्चे इसका मकसद भूखे मर रहे हैं। बच्चे तो फिर उसके भूखे मर रहे हैं। अगर वो माँ है तो बच्चा तो नहीं, माँ तो नहीं देख सकती ना बच्चे को भूखा मरते हुए। यहाँ पर बिल्कुल हर बंदा यहाँ पर रो रहा है, कारोबार है ही नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं। ये नहीं कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी है। कारोबार कहाँ पर हो रहा है आप बताएं ना, किस जगह पे हो रहा है? कोई ऐसा जो हाई लेवल के कारोबार है वो हो रहे होंगे, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब गरीब आवाम बिल्कुल पिस गई है, पिस गई है, बिल्कुल मर गई है सब। खान साहब की हुकूमत में कहा गया था रेडी बानों को मत छेड़ो और उनके नहीं लिए छेड़ा। प्रोग्राम भी किए गए थे। नहीं छेड़ा था। तो वो तो बुरा था यार, वो तो खराब आदमी था। नहीं यार, कहाँ से खराब था? कारोबार अच्छा था, महंगाई कर रहा था, लेकिन कारोबार भी हो रहा था। कारोबार हो रहा था। कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। रोज 2-3 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगा रहे थे। यहाँ पर तो 200 की लगानी मुश्किल हुई हुई है। अल्लाहू अकबर। अब खान साहब ने जेल में बैठ के ये कहा है कि हमें जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना होगा। मैसेकर हुआ है, आपको पता है एहतजाज के ऊपर। आप जाएंगे उनके साथ? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, जरूर जाएंगे। एहतजाज वालों को सीधी गोलियां मारी जाती हैं। कोई बात नहीं, मार दें, वैसे भी तो मर रहे हैं, कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं आपको भी नहीं है? भाई 2-3 दिन हो गया रेडियां गई हैं। ये देखे बेंच लेके आए, रेडियां तो वापस ही नहीं आई। एक तो होता है ना जुर्माना, वो भी नहीं है। तोड़ रहे इस हैं, भाई को तोड़ रहे हैं, वार्ड रेडियां वाले तोड़ लेके रहे गए 15,000 रुपया दे के ये वापस आया है। ऊपर से पर्चा जलालत वो जो है एक तरफ है। देखिए तजावुजात पे होना चाहिए काम, लेकिन जिस तरह से हालात इस वक्त बना दिए गए हैं कि कोई ना कोई आपको ऑप्शन देनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूं कि भाई गलत बात नहीं कर रहे। ये जो रेडी है ये स्टूल बनाया हुआ है ऐसे ही, और बड़ा मतलब कि कम बड़ी जो होती है ना नॉर्मल लकड़ी, उसका ये बनाया हुआ है। पता नहीं ये टिका हुआ कैसे है। तो ये इस वक्त हालात है कारोबारी अफराद के। सर क्या मैसेज है इस वक्त हुकूमत को, मरियम नवाज शरीफ को, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को? बस वो सीट से ही चली जाए, यही मैसेज है।
आपका जनाब? यही जो भाई ने बोला ये ठीक बोला है। ठीक बोला। चले मैं आगे चलता हूँ नाज़रीन किराम। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने हालात हैं, मैं आगे चलता रहूँगा। लेकिन जनाब सर क्या तकलीफ आ रही है कारोबार करने में, और कारोबार सही चल रहे हैं नहीं सही चल रहे, बताएं ज़रा। सर कारोबार बिल्कुल नहीं सही चल रही, क्योंकि किसी तरह का काम करने नहीं दे रहे। गवर्नमेंट तंग भी कर रही है और खर्चे भी बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट तो मरियम नवाज शरीफ तो कह रही है वो कौम की माँ है यार। वो माँ तो फिर दूध भी नहीं ना दे रही। माँ तो वो है ना जो बच्चों को पाले, वो तो रोजी भी ख़त्म कर रही है हमारी। बच्चों के लिए लेके जाने के लिए सारा दिन ये काम भी करते हैं, रात को 200-300 से ज़्यादा दिहाड़ी नहीं बन रही। ये 2 महीने हो गए हैं, बिल्कुल फ़ाक़ वाला हिसाब है। यहाँ पे आते हैं, थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, घर में पैसे भेजते हैं तो वो खाना पकाते हैं। घर में कितने अफराद हैं सर आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं। और घर अपना है सर? हमारे फिलहाल समझ लिया अपना एक किसी ने। हाँ जी। तो सर कैसे गुजारा होता है? बड़ी मुश्किल गुजारा है, यकीन करें बहुत मुश्किल गुजारा है। 3 बच्चों को स्कूल से उठा लिया हुआ है। स्कूल नहीं पढ़ा रहे आप, उठा लिया है? हालात ही नहीं है, कैसे फीसें दें? फीसें कहाँ से दें? क्योंकि स्कूल घर से काफ़ी दूर है, वो रक्षा भी अगर करवाती हैं तो रक्षा वाला भी कम से कम 3-4 हज़ार रुपये लेता है, बड़े भी रियायत करे तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं वो काबू में नहीं है इनके? बिल्कुल नहीं। उनके तो यानी कि समझ लें गरीब आदमी को उन्होंने ख़त्म कर दिया हर तरह। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये मरियम नवाज का आप कह रहे हैं, मरियम नवाज के पास कि क्या करना चाहिए? आप उनको ये कहना चाहिए तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक है, बेरोजगार है, इधर से वो तस्वीरें बना कर आगे भेज रहे हैं। ठीक है, ये इधर क्यों लगाने दे रहे हैं? ऊपर जाकर उनको क्या इधर क्यों लगाने दे रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, हम किधर जाएं? तो ये तो मरियम नवाज पता है आपको क्या कह रही हैं? वो कौम की माँ है। अच्छा जी। तो ये उन्होंने बात की है पंजाब की आवाम से, और ये एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है। तो आप भी बहैसियत मरियम नवाज उनको माँ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? सर मेरी बात सुने, वो आपकी बात ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, पर ये चीज़ है जो गरीब आवाम किधर जाएगी आप ये बता दें मुझे। जितनी देर तक उन्होंने हल निकालना उतनी तक आधा गरीब तो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। बिल ऐसे आ रहे हैं जैसे पर्चे आ रहे हैं बच्चों में। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, किराए वाले किधर जाएंगे? किराए का मकान है, 16,000 किराया है, 18,000 25,000 भी बिल भरा हुआ है हमने। हमारी कोई मशीनें तो नहीं है या अपना कारोबार तो नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। 50 रुपये कमीशन है हमारी, कभी 10 बिकती है, कभी 2 बिकती हैं। 100 रुपये हम लेकर जाते हैं, उसमें हम घर का खर्चा चलाएंगे, बिल देंगे, किराया दे कहाँ से करेंगे हम? तो इस वक्त हालात किस तरह से देखते रहे मरियम नवाज के लिए? सर हालात जो भी आ रहा है सब ये ना कि वो थोड़ा सा हमें एक जगह दे देना, मकूल से हमें जगह दे दें कि सर आप यहाँ पे अपना लगाएं, अपना रोजगार करें। बिल्कुल ऐसी है। ये नहीं है ना कि आप बैठे हुए हैं देखें, हम मतलब कोई तंगी नहीं दे रहे ना, हमने रोड ब्लॉक किया हुआ है। नहीं बिल्कुल ऐसी है। हम एक साइड पे बैठे हुए, हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए, तो यहाँ बैठो, अपना कमाओ, अपना बच्चों का रिज़्क कमाएं। बस कोई अल्टरनेटिव निकलना चाहिए, यही बात मैं भी कर रहा था कि तजावुजात पे काम करें आप, लेकिन कोई अल्टरनेटिव निकालें लोगों का। बंदा अगर साइड पे बैठा हुआ तो उसको तंग ना किया जाए। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे तो मतलब हर महकमा आ रहा है, हमें तंग कर रहा है। हर महकमा, एक महकमा नहीं, हर महकमा। मतलब आप कह रहे हैं कि हर कोई सिर्फ तजावुजात के अलावा भी आ रहे हैं? हर महकमा आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें एक जगह दे दी जाए, परमानेंटली भी आप यहाँ पे बैठो, अपने बच्चों का रोजगार कमाओ। हम किसी को परेशानी नहीं देते, ना हम किसी को तंगी देते हैं। ज़ाहिर है अगर हम यहाँ पे कमाएंगे नहीं तो फिर चोरी डकैतियों पे ही जाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उसके अंदर रहती है तो आप रिज़्क कमाएं, हम कमाने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं है हमें। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आवाम के सामने आपके सामने तासुरात हैं कि इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया। वो कह रहे हैं कि तजावुजात पे आप बिल्कुल काम करें, लेकिन कोई अल्टरनेटिव रखें इसका। वो ये नहीं कह रहे कि मरियम नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल ही मुतमईन नहीं है। आप ठीक है काम कर रहे हैं, तजावुजात पे होना भी चाहिए काम, लेकिन कोई अल्टरनेटिव निकालें जिससे गरीब आवाम जो इस वक्त रोजगार अफोर्ड नहीं कर सकती, दुकान अफोर्ड तो नहीं कर सकती ये लोग, तो ये लोगों के लिए कोई ना कोई एक तरीका निकले कि अपना आसानी के साथ रोजगार चला सकें।